ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ بات جو ہے یوٹیوب پہ بھی پوسٹ ہو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور تھوڑے سے فقہی مسائل کو بھی کلیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ دو مکتبہ فکر ہیں، اس وجہ سے دونوں ہی اپنے اپنے اسٹرانگ ویوز خواتین کے اعتکاف کے بارے میں لے کے بیٹھے ہیں، اور دونوں کے دلائل کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر ایک بین کا راستہ علماء اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ، کیونکہ بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کا گھر میں اعتکاف کرنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، اور وہ قرآن کی کس آیت کو دلیل بناتے ہیں؟ وہ یہ آیت ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب مسجدوں میں عورتوں نے اعتکاف کیا ہو تو آپ لوگ ان سے مباشرت نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ جب تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو صرف مسجد میں اعتکاف کی دلیل ملتی ہے قرآن سے، اور یہ دلیل بڑی اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد میں اعتکاف فرمایا، کہیں گھر میں اعتکاف کی دلیل نہیں ملتی کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے، یہ ایک مضبوط دلیل ہے، اسے ہم کالعدم قرار نہیں دے سکتے۔ اب فقہ حنفیہ اور ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے مسجد میں عورت کے اعتکاف کو مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا۔ ایون جو فقہا جو ہے نا وہ مسجد میں اعتکاف کے قائل ہے نا، ان میں بھی حضرت امام شافعی اسے ناپسند کرتے ہیں، انہوں نے اسے ایک جگہ مکروہ بھی لکھا ہے۔ اب عرب علماء کی جو اکثریت ہے وہ کہتے ہیں کہ جدید دور میں کہیں امت فتنے میں نہ پڑ جائے، لہٰذا عورت کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دلائل کے اختلافات ہیں دو گروپوں میں۔ اب فقہ حنفی نے جو کہا ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آخری عشرے میں امہات المومنین نے اپنے خیمے مسجد نبوی کے باہر لگوائے، مسجد نبوی میں لگوائے کہ وہ اعتکاف کرے، تو آپ نے وہ خیمے اکھڑوا دیے تھے، اس کا مطلب ہے عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد امہات المومنین نے ہر سال اعتکاف فرمایا، اس کی ہمیں تشریح نہیں ملتی کہ انہوں نے کہاں اعتکاف کیا، لیکن ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے خیمے مسجد نبوی سے اکھڑوائے تھے تو انہوں نے مسجد میں تو اعتکاف نہیں کیا، تو یقیناً انہوں نے گھر میں اعتکاف فرمایا، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حنفی فقہ جو ہے، ہم میجورٹی ہم میں اہل سنت والجماعت اور حنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہے، ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی وہ روایت کہ انہوں نے فرمایا، کیونکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بہت چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً آدھی صدی تک وہ آپ کے بعد حیات رہی، اور فقہا، صحابہ، تابعین ان سے مسائل پوچھتے رہے، اور ان کا یہ بیان تھا کہ اگر آج کے دور میں، اموی دور میں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے، مفہوم ہے، تو وہ خواتین کو جس خلی اور حالتوں میں یہ مسجدوں میں آتی ہیں وہ انہیں منع فرما دیتے، کیونکہ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے۔ دونوں گروپوں کے پاس مضبوط دلائل ہیں، ایک قرآن کی آیت کو دلیل بناتا ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کے مساجد کے خیموں سے اکھڑوانے کو، اور دوسرا کیا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی اس روایت کو دلیل بناتا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل، امام مالک رحم اللہ، امام شافعی رحم اللہ، وہ کس کے حق میں ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف نہیں کرے گی؟ وہ کہتے ہیں مسجد میں ہو جائے گا مگر ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کو جائز قرار دیتے۔ اتنی بات تو کلیئر ہو گئی۔ اگر کوئی ایسی سچویشن کسی مسئلے میں ہو جائے کہ دونوں گروپس کے پاس دلائل بھی ہوں، مضبوط دلائل ہوں، تو اس میں پھر اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ قرآن اور سنت سے متصادم بات کر رہا ہے، آپ غلط ہو، کسی پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ گھر میں اعتکاف بدعت ہے،
अब इसकी दलील दी जाती है। अब उन्होंने ये तो उसको क्लियर नहीं किया कि घर में किसका इत्काफ बिदअत है, मर्द का या औरत का, कोई उसमें क्लियर है ही नहीं, क्योंकि ताबीन के दौर में बाज मर्द घरों में इत्काफ को जायज करार देते थे। अब मालूम नहीं कि उन्होंने उन मर्दों के रद्द के लिए यह बात फरमाई कि घर में इत्काफ बिदअत है। हम किसी को भी बिदअत नहीं कह सकते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट से हम में से ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक है बरे सगीर पाको इनसे। वहाँ सिचुएशन ये है कि वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो किसको फॉलो करती है, फिकाह हनफी को करती है। अब मस्जिद बैत में औरत ने इत्काफ करने को उन्होंने जायज़ करार दिया है। मस्जिद बैत कौन सी है? वो जगह जहाँ औरत अमूमन घर में नमाज पढ़ती है। अगर उसने घर में कोई मखसूस जगह नहीं बनाई हुई तो अब उसने, जैसे आज बाज़ लोगों का 18वां रोज़ा है, बाज़ का 19वां, इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम इस पे बात करें कि कुछ ख़वातीन कल इत्काफ करेंगे, मर्द जिन्होंने हमसे एक दिन पहले रोज़ा रखा है चांद के इख्तलाफ की वजह से, और हम लोग जो हैं वो संडे को इत्काफ करेंगे। अब जिन्होंने कल इत्काफ करना है, तो आज हमारा ये आखिरी क्लास है, तो अगर वो इरादा कर रहे हैं कि उन्होंने इत्काफ करना है तो वो अपने घर में एक जगह को मखसूस कर लेंगे। पूरा घर नहीं आप कह सकते कि मेरी मस्जिद बैत है, उसमें एक हिस्से को मखसूस करना पड़ेगा। सवाए ज़रूरी हाजात के वहाँ से नहीं निकलना, यानी आपका वाशरूम उस रूम में नहीं है, आप क़ज़ाए हाजत के लिए जा सकती हैं। आप अपना खाना घर में देने वाला आपको कोई नहीं, आप खाना लेने जा सकती हैं। अगर कोई खाना पकाने वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं है, या कोई है तो दे नहीं सकता, वो बीमार है खुद, या उसकी कोई मजबूरियां हैं, तो आप उठ के अपना खाना ले भी सकती हैं। कोई के लिए एयर फ्रायर में रख के, ये नहीं वहाँ बिरयानियाँ और साग पकाने लग जाए, कोई के लिए ये करके फिर अपने कमरे में जहाँ वो आपका मस्जिद बैत है ना, वहाँ आप जल्दी से पहुँच के आपकी इफ्तारी सहरी हर नमाज वहाँ ही होगी। अगर आपका शोहर, आपका बेटा, आपका भाई, आपके महरम वो आपके पास आके बात कर सकते हैं, यानी आप अपने शोहर से कोई ताल्लुकात नहीं, बातचीत कर सकते हैं। वहाँ बैठ के आप अपने बच्चों का सीना परोना, कढ़ाई, सबक पढ़ाना, उनको होमवर्क कराना, पोते पोतियों को आप करवा सकती हैं। अपनी ज़ुबान से जिक्र करती रहें, आपका जो भी जिम्मेदारियां वहाँ बैठे बैठे कर सकती हैं। ठीक है ना? इत्काफ है क्या? अल्लाह के लिए खुद को बाउंड कर लेना। फिका हनफी का ये ख्याल है कि अगर औरत को ना मस्जिद में इजाज़त हो, मस्जिद के में जाने के जो फितने आजकल हैं, जिस हुलियों में हम लोग मसाजिद में जाती हैं, तो अगर इजाज़त ना दी जाए तो औरत तो एक बड़े सवाब से महरूम रह जाएगी। जो एक ज़्यादातर वक्त उसका आखिरी अशरा लैलतुल कदर की तलाश में लगना था, वो नहीं लग सकेगा। अब इत्काफ के लिए रोज़ा भी शर्त है, रोज़ा टूटा तो इत्काफ टूटा। जिनको शक हो कि इसी दौरान उनके कोई मेडिकल इश्यूज आएंगे, तो वो पहले से ही नफली इत्काफ की नियत करें, ताकि अगर उनका रोज़ा टूटता है तो वो उनका नफली इत्काफ टूटे। क्योंकि सुन्नत इत्काफ अगर 10 दिन का, जो 10 दिन का इत्काफ है वो सुन्नत है, अगर वो टूटेगा तो फिर उन्हें दोबारा उसकी कज़ा अगले रमज़ान में करनी होगी। इसी दौरान पूछा जाता है कि खुशबू लगा सकती हैं? हाँ, क्योंकि आप किसी गैर महरम के सामने नहीं जा रही। खुशबू लगाने से फरिश्तों की तवज्जो मिलती है, आप पाक साफ हैं, आप लगा सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं, आप पढ़ा सकती हैं, बिला ज़रूरत आप फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब लैलतुल कदर के असूल की कोशिश करनी है आपने, तौबा करनी है। और वैसे भी ये है कि फ़िक़्ह हनफी के पास ये भी बड़ी मजबूत दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की नमाज को सेन से ज़्यादा कमरे में, और कमरे से ज़्यादा उसके पिछले कमरे कोठड़ी में बेहतर करार दिया, अफजल करार दिया। और वैसे भी ये है कि अगर औरतें मसाजिद में उनको जाने की इजाज़त खुल्लम खुल्ला दे दी जाए, तो आपने देखा कि एक हुक्म तो पूरा होगा, लेकिन उसके साथ 20 हुक्म टूटेंगे। यानी जिस तरह से हम तैयारियां करके जाते हैं, जो हमारे अबाए और हुलिये हैं, जो हमारे अबायों की सजावट, और वो जो टर्किश स्टाइल हमने मैक्सीज पहनी हुई हैं, जिसमें हमारा अंज अंज छलक रहा है नाउजुबिल्ला, तो वो फितना नहीं तो क्या है? वो मुशाहिदा आपने भी किया और मैंने भी किया है। वो हमारा ये इत्काफ नहीं, हमारी ये नमाज नहीं, दूसरे नमाजियों की, मर्दों की नमाजें और इत्काफ भी बर्बाद करेंगी। आपने ईद के दिन देखा है ना, जिन होलियों में हम मस्जिदों में जाती हैं, इतनी इतनी हील पहनी हुई है, पाजेबें छन छन कर रही हैं,
टखनों से ऊपर ट्राउज़र हैं, और अल्लाह हमें माफ़ कर दे, खुशबू के भभोके हैं। ये क्या जी, हम ईद नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वो एक हुक्म आप पूरा कर रही हैं, आप उसके बदले में 10 हुक्म तोड़ रही हैं और पूरी उम्मत को फितने में मुब्तला कर रही हैं। अगर मसाजिद में जाना है तो पूरी तमीज़ के साथ जाना है, और आफियत इसी में है कि औरत मस्जिद बैत में इत्तिकाफ करे। एक क्वेश्चन और भी आता है कि वो मदारिस जहाँ सिर्फ खवातीन हैं, बिन्नात के जो मदरसे हैं, वहाँ पे खवातीन की ही मस्जिद है, मर्दों की कोई आमदोरफ्त नहीं है वहाँ पे मस्जिद बैत में इत्तिकाफ नहीं होगा, वहाँ पे उसी मस्जिद में इत्तिकाफ होगा, क्योंकि वो खवातीन की मस्जिद है, उनके लिए मुख्तस है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इत्तिकाफ के दौरान गुस्ल कर सकते हैं? ठंडक हासिल करने के गुस्ल नहीं कर सकते कि हमें आदत है रोज़ गुस्ल करने की तो हम रोज़ शावर लेंगे, ये वक्त का ज़िया है। मजबूरी से पाकीज़गी, हमारा पाकीज़गी का मज़हब है ना, पाकीज़गी इख्तियार करने के लिए, और यानी आपको अशद ज़रूरत है और 2-3 दिन हो गए, आप चाहती हैं कि आप साफ़ कपड़े पहन के फ्रेश हो के, क्योंकि इत्तिकाफ में जो भी हो एवरी डे पसीना बहुत आता है, क्योंकि एक जगह बैठे हुए दिन रात आप जिक्र में इबादत में हैं, प्रेशर आता है ना, तो लिहाजा लेकिन क्विक शावर लेना है, ठीक है ना। ज़्यादा देर तक आप बाथ टब में बैठी हुई हैं और हार्ड शावर आपने ऑन किया, इस तरह नहीं, क्विक शावर, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब इत्तिकाफ हम करते क्यों हैं, इसकी फजीलत क्या है, इससे मिलेगा क्या? देखें, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, हमने 11 महीने 20 दिन दौड़म दौड़ियाँ की, एक 10 दिन मेरे रब सोने ने साल में ऐसे बना दिए कि जिसमें कहा कि मैं ऐसी रात दे रहा हूँ जो हज़ारों महीनों से बेहतर है, हज़ारों महीनों से बेहतर है, और उसकी शान में कुरान में सूरत भी नाजिल कर दी, वो सूरत जिससे हमें इश्क हो गया है। हम खाने के बाद भी पढ़ते हैं सूरत कदर, हम बारिश होते हुए पढ़ के दुआ करते हैं, हम वज़ू के बाद पढ़ते हैं ताकि वज़ू नूरानी हो। हम जुमा के दिन आज जुमा नमाज के बाद 11 बार सूरत अलम नशरा, सूरत कदर, लाइलाज बीमारियों से बचने के लिए पढ़ेंगे। हम चांद निकलता है 1 बार पढ़ते हैं, और हर रात चांद की बढ़ोती के साथ एक एक दफ़ा हर रात सूरत कदर पढ़ाते जाते हैं, और 15 तक चांद पूरा फुल हो जाता है, और हम 15 तक की सूरत को एक एक दिन के तवातर से उसमें एडिशन करते चले जाते हैं। हमें तो इस सूरत से बड़ा इश्क है, और इस सूरत में मेरे रब ने इस रात को हज़ारों महीनों से बेहतर करार दिया है। इस रात की तलाश में हमने बैठना है, ठीक है ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में है कि आपने रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ फरमाया, फिर आपने लैलतुल कदर की तलाश में 20 दिन का 30 दिन का आप भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी ख़वातीन हैं जो फारिग हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, पूरा महीना इत्तिकाफ कर सकती हैं, 20 दिन का कर सकती हैं। लेकिन सुन्नत जो इत्तिकाफ होगा वो कौन सा होगा? आखिरी अशरे का, 10 दिन का। अब मुत्तकिफ क्या ना करे, ना तो वो किसी की बीमार पुरसी करने जाए, ना जनाजा पढ़ने जाए, ना औरत मर्द को, मर्द औरत को हाथ लगाए, ना मुबाशरत करे, ठीक है ना, ना बगैर ज़रूरी हाजत के अपनी जगह से उठे, और रोज़े के बगैर इत्तिकाफ नहीं है। रोज़ा गया तो इत्तिकाफ भी गया। अगर सुन्नत इत्तिकाफ टूटा तो उसको कज़ा करना पड़ेगा। अगर नफली मुस्तहब आपने इत्तिकाफ के, जैसे आप यहाँ क्लास में बैठी हैं, आप सब ने नफली इत्तिकाफ की नियत की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मुस्तहब इत्तिकाफ है, हम पूरा साल कर सकते हैं, नेकियां ही नेकियां हैं, हम लम्हा लम्हा इनको ले सकते हैं। अब मोतकिफ जो है वो तो गुनाहों से बचा रहा ना, लेकिन कैसे बचा रहा? अगर वो फ़ोन से दूर रहा, फ़ोन को सिर्फ खैर के काम के लिए इस्तेमाल करना है। अगर 24 घंटे आप फ़ोन पे फेसबुक पे ऑन रही तो क्या हो जाएगा? फिर गुनाहों से कैसे बचेंगे? नज़रों से क्या क्या चीज़ें आपको एंगेज करेंगी, ऑक्युपाई करेंगी। मुतकफ है क्या? मुतकिफ है कि खुद को रब के लिए महदूद कर लेना। अगर महदूद ना किया, अपनी सोचें, अपनी वसतें, अपने क्लिक्स हमने लामहदूद रखे, तो फिर हमें वो खैर, वो नूर हासिल नहीं हो सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में 10 दिनों का इत्तिकाफ किया तो वो ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए।
आप सोचें कोई जी होश इंसान जो ये अफोर्ड कर सकता हो, वो कभी अपनी जिंदगी में इत्काफ छोड़ेगा? हम कहते ये 2 हज और 2 उम्रे, बजायर तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि $1 लाख का खर्चा है, ठीक है ना, 20-20 30-30 हजार का तो हज है और उम्रे, और फिर फटीक और मशक्कत, घरों से निकलना, जॉब से छुट्टियां लेना, देश परदेश, जहाज़ों के धक्के। मेरे रब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये फरमा दिया है, ऐसा है जिसने 2 हज और 2 उम्रे किए। देखें साल में ये 10 दिन हमें 2 हज और 2 उम्रों का अजर से माला माल कबूलियत वालों से कर जाते हैं। जो हज उम्रा हम करें, पता नहीं किसी फिस्क फजूर की वजह से, किसी माल के हलाल हराम जरे की वजह से कबूल हो ना हो, लेकिन ये कबूल है, कबूल है, हमने उसके लिए इंशाल्लाह कबूल है, बैठे हैं। फिर फजर के बाद अपनी जगह पे बैठे रहना, अज़कार करना, और जब सूरज तलू हो तो 2 नफल पढ़ना, मकबूल हज और उम्रे का अजर है जो हर रोज मिलता है। मेरा रब कितना करीम, कितना रऊफ, कितना रहीम, कितना पाक परवरदिगार है कि हर रोज हमें हज उम्रे का अजर देता है और हम सोए पड़े रहते हैं। वो कहता है सूरज निकला है, 2 नफल पढ़ लो शुक्राने के, तेरे वक्त में बरकत, तेरे माल में बरकत, और तुम्हारी जिल्द दोजख की आग से महरूम रह जाएगी, और तुम्हारे दामन में हज और उम्रा मकबूल में डाल के भेजता हूँ। दिन का आगाज मकबूल हज उम्रे से। हम रोते हैं अल्लाह हज पे नहीं बुला रहे, अल्लाह कैसे जाए, पैसे नहीं है। ये पड़े हुए हैं हज उम्रे हर रोज तुलुए फजर पे, और रमजान में 2-2 हज और 2-2 उम्रे इत्काफ में पड़े हुए हैं। कोई लेने वाला है, वो तो मनादियां करा रहा है, वो तो देने को तैयार बैठा है। ये जो मर्द हैं वो मस्जिद में अल्लाह की नीयत से जाएंगे कि भाई हम अल्लाह के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। आकिल बालिग होना कोई तमीज नहीं है, आकिल होना तमीज है, होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए कि उसे पता हो कि मसाइल क्या हैं, लेकिन बलूगत शर्त नहीं है। आप अपने मर्द बच्चों को, नर बच्चों को, अपने बेटों को छोटी उम्र में इत्काफ की आदत डालें, इत्काफ की आदत डालें, ताकि वो मस्जिद में उन्हें बैठना आए, उन्हें टिकना आए, उन्हें टिकना आए, उन्हें प्रोवोक करें, उन्हें ये हदीसें सुनाएं, ताकि उन्हें पता हो कि फ़ज़ाइल क्या हैं। फ़ज़ाइल पता होंगे। देखें जानवर को भी अगर टहनी दिखाते हैं तो वो आपके साथ साथ चलता है। टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम दिखाते हैं तो बच्चा आपकी तरफ आता है। रब ने जो नेमतें दी हैं उनके फ़ज़ाइल उम्मत को बताएं, ताकि उम्मत इस तरफ आए और अपने बच्चों को बताएं। अपने बच्चों को इत्काफ बैठा के तो देखें, रब उनके दिलों को दीन के लिए कबूल करेगा। और किस मस्जिद में मर्द इत्काफ करें? किसी भी मस्जिद में कर सकते हैं। अब जितनी बड़ी मस्जिद होगी अजर उतना ही बड़ा है, क्योंकि उतने लोगों का साथ है ना, उतनी बड़ी जमातें हैं ना। जामिया मस्जिद में इत्काफ ज़रूरी नहीं है, जहाँ भी बाजमात नमाज होती हो, लेकिन जितनी बड़ी मस्जिद होगी, सबसे बेहतरीन इत्काफ किस मस्जिद में है? मस्जिद हरम शरीफ में, ठीक है ना, बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में। फिर मस्जिद नबवी अला साहबी वस्सलात वस्सलीमात में, फिर मस्जिद अक्सा में, ठीक है ना, यानी उसी तरतीब से जैसे मस्जिदों की फजीलत है। अब फ़िक़्ह हनफी में औरत को मस्जिद में इत्काफ तो मकरूह है, उसने घर में इत्काफ करना है, मस्जिद बैत अपनी बनानी है, उसी में बैठना है। अगर जगह मुकर्रर नहीं है तो कर लेनी है। वहाँ पे अगर पाकीज़गी का मसला हो कि जैसे बच्चे, घर, फैमिली, तो आप अपनी जगह को वो थोड़ा सा ऊंचा, जैसे हमारी अम्मियों ने, नानियों, दादियों ने अपनी वहाँ पे चटाई टाइप ऊंची, वो क्या चौकी होती थी नमाज की, ठीक है ना, तो वो जो है आप उस जगह को बुलंद, पाक, मुसफ़ा रख सकती हैं, खुशबू लगा सकती हैं। और इत्काफ 3 किस्म का है। मैं दोबारा आपको क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते रहे हैं और उसी के मुताबिक मैंने कोशिश की कि मैं कवर करूँ सबको। पहला इत्काफ क्या है? वाजिब इत्काफ। वो क्या है कि आपने मन्नत मान ली, ठीक है, अब आपको करना होगा। फिर सुन्नत मौक़दा, ये जो 10 दिन का, रमज़ान के आखिरी 10 दिन का इत्काफ है, ये सुन्नत मौक़दा है। और कब शुरू होना है, इसमें भी आप लोग ने कोई बेध्यानी नहीं करनी कि आप कहें कि मैं फैमिली के साथ इफ्तारी करके तो इत्काफ करूं 20वें रोजे। नहीं, आपको
افطاری بھی اندر کرنی ہے اور مغرب بھی اندر پڑھنی ہے. مغرب سے پہلے آپ کو اپنے مسجد بیت میں چلے جانا ہے. اگر آپ مغرب کے بعد اذان ہونے کے بعد افطاری کے بعد گئیں تو وہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا. آپ سنت اعتکاف سے محروم رہ جائیں گی. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں عصر اندر پڑھوں تاکہ عصر اور مغرب کا جو خاص وقت ہے وہ مل جائے. وہ قبولیت کا وقت ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ مجھے طلوع فجر سے نماز فجر سے طلوع فجر تک اور نماز عصر سے غروب آفتاب تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے. کہ اتنا افضل ہے اس وقت جائے نمازوں کے ساتھ چپکنا، دعاؤں کے لیے وقت نکالنا. تو وہ وقت میں اندر اویل کروں. اب آپ اندر گئیں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی. زبان سے نہ بھی کہیں تو اعتکاف آپ نے ظاہر نیت کیا. آپ نے پہلے دن میں اپنے سامان کی وہاں سیٹنگ کی ہے. آپ نے گھر والوں کو زیادہ تکلیف نہیں دینی. آپ اپنی کھجوریں، اپنا پانی کا بندوبست، آپ ایسی چیزیں اپنی پہلے ہی فروٹ وغیرہ وہاں رکھ سکتی ہیں تاکہ روز وہ آپ کے لیے ٹرے اٹھا کے نہ جائیں، پانی کے ارینج نہ کریں، کھجوریں نہ روز لے کے جائیں. جو چیزیں آپ وہاں رکھ سکتی ہیں وہ پہلے سے رکھ لیں. اپنی ریلیونٹ ساری کتابیں، آپ سارا کچھ وہاں پہ رکھ لیں. آپ نے جب ابھی آپ نے اثر نہیں نہ پڑھی، اگر آپ اثر اندر پڑھنا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے 2 نفل پڑھیں گے حاجت کے کہ اللہ پاک جی تیرے سالانہ فقیر آ گئے ہیں، ہر سال تیرے سامنے آ جاتے ہیں، منگتے آ جاتے ہیں. ویسے ہی مجھے تو جب بھی اعتکاف ہو تو مجھے یہ بات بڑی یاد آتی ہے. چھوٹے ہوتے تو بعض چیزیں ذہن میں جم جاتی ہیں. جیسے پاکستان میں تھا نا کہ کچھ پٹھان نا کپڑا بیچنے آتے تھے، سال میں ایک بار آتے تھے اور سال کے بعد پھر آتے تھے اور وہ پیمنٹ لیتے تھے سال کے بعد محلوں میں گلیوں میں. تو میں کہتی ہوں کہ جیسے وہ آتے تھے نا ویسے ہی ہم دوبارہ غرائی کرنے آ گئے ہیں، آپ سے لینے آ گئے ہیں. تو اللہ پاک جی عطا فرما دیں. تو آپ 2 نفل توبہ کے، قبولیت کے. اللہ پاک جی جو گناہ کر کے 11 مہینوں میں آئے معاف کر دیں، اب تیرے پاس آ گئے ہیں، منگتے جھولیاں بھر دے. ٹھیک ہے. اور حاجت کے کہ اللہ پاک جی اچھا سا اعتکاف کرا دیجیے گا. لیکن اگر آپ نے اثر باہر پڑھ لی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے مغرب اندر پڑھنی ہے نا اصولاً، تو آپ پھر نفل نہیں پڑھیں گی، آپ اعتکاف کی نیت کریں گی. پہلے سے آپ نے اپنا ضروری سامان، یہ نہیں بھاگی پھر رہی ہیں بعد میں او میرا عطر وہاں رہ گیا، او میری فلانی چیز، اندر سے رولا ڈالا ہے، بیچاری فیملی پریشان ہے، اماں اعتکاف کیا بیٹھ کے سیاپا پڑ گیا ہے. ایسے نہیں آپ نے کرنا. اپنا پورا بندوبست لسٹ ابھی سے بنا لیں. جن لوگوں نے کل اعتکاف کرنا ہے پہلے سے آپ کے پاس لسٹ موجود ہو کہ کیا کیا آپ کی چیزیں آپ کو اس دوران چاہیے ہوں گی، آپ وہاں پہ رکھیں. اور سوائے حاجت ضروریہ کے آپ نے وہاں سے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے. یہ دوسرا اعتکاف ہے. پہلا واجب تھا جو آپ نے منت مانی تھی. ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو ہم منت مان لیتے ہیں اللہ پاک جی میری حاجت روائی کر دیں، میں اگلے سال رمضان میں اعتکاف کروں گی. اور اللہ کے فضل سے وہ حاجت روائی ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے انشاءاللہ. کیونکہ معتکف کے ساتھ تو اللہ کے بڑے وعدے ہیں. وہ تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا فقیر ہے، اللہ کا منگتا ہے. اس نے تخت چھوڑا، بخت چھوڑا، بستر چھوڑے، محل چھوڑا اور وہ زمین پہ بوریا نشین ہو گیا. ہمارے دروازے کے آگے کوئی فقیر بیٹھے اور آ کے 1 دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، ہم نہ بھی دینا چاہے تو ہم بندے، ہم کہتے ہیں اللہ محلے والے کیا کہیں گے کہ اتنے یہ تھوڑ دلے ہیں کہ اس کو کچھ دے ہی نہیں رہے. ہم کہتے ہیں اس کو کوئی دودھ لاؤ اور اٹھاؤ، جو مانگتا ہے دے دو. اور وہ میرا رب غیرتوں والا، عظمتوں والا، حیا والا، جب اس کے سامنے 10 دن کے لیے کوئی بوریا زمین پہ لگا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اس سے بھی رنگو، اس کے میزبانوں کو بھی رنگو، جو اس کو ٹرین سجا سجا کے دے رہے ہیں ان کو بھی رنگو، اور سب کو بھرو، سب کو عطا کرو. اور اپنے بچوں سے کہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی چیز دیں تو ربنا تقبل منا پڑھ کے دیں، پھر دیکھیں ان کو جو رنگ لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ نیت کر کے دوسرا اعتکاف جنہوں نے 10 دن کا کرنا ہے، جن کو یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو وہ اگر کل کرنا بھی چاہتی ہیں، یعنی جب بھی آپ کا چاند نکلے 20ویں روزے کی مغرب اندر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ پھر نفل اعتکاف کی نیت کریں گی. اگر بعد میں نیت بھی کی تو وہ موقدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو سنت موقدہ کا اعتکاف ہے نا، یہ اعتکاف کفایہ بھی ہے. آپ کے گلی محلے کی طرف سے، آپ کے گلی محلے کی طرف سے یہ سنت موقدہ بھی ہے. اگر ایک بندہ ہماری اسٹریٹ سے نہیں، ایک بھی نہیں کرتا تو ساروں سے پوچھو گی
ये सब की तरफ से है, मुतालबा किया जाएगा। इससे शहर बरी जिम्मा हो जाता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अदा करेंगी, ठीक है ना। और इन दो इत्काफों के अलावा, वाजिब और सुन्नत मुक्कदा के अलावा जो इत्काफ किया जाएगा वो मुस्तहब होगा, गैर मुक्ता होगा। ये जो अभी आप करके बैठी हुई हैं, ये आखिरी अशरे में आप एक रात का, एक दिन का, 2 दिन का, वीकेंड का कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है ना। इस इत्काफ मुस्तहब के लिए रोज़ा भी शर्त नहीं है, हम पूरा साल कर सकते हैं, ना इसके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है, ठीक है ना। आप मस्जिद में जब भी जाएं इत्काफ की नियत कर लें, आप घर में जब भी बैठे जिक्र के लिए इत्काफ की नियत करें, यानी बगैर मेहनत के सवाब मिल जाता है, सिर्फ नियत से इत्काफ का सवाब मिल जाता है, इसे खोना ही नहीं चाहिए। बल्कि फुकहा तो ये कहते हैं कि मस्जिद के दरवाजे पे ये लिख के लगा देना चाहिए कि इत्काफ की नियत कर लो, इत्काफ का सवाब पाओगे, ताकि जिसको पता है उसकी याद दहानी हो जाए, जिसको नहीं पता वो मस्जिद में दाखिल होते इत्काफ कर दे, और मस्जिदें शोर गोगा से बच जाएं, दुनिया की बातों से बच जाएं, लोगों के जोड़े और अबाए उबे जुबे देखने से बच जाएं, ठीक है ना। तवज्जो मिल जाए अल्लाह की तरफ, तलक मौला मिल जाए, कनेक्शन बन जाए, ठीक है ना। लिहाजा अगर कोई मरीज है, मुसाफिर है, उसने रोज़ा नहीं रखा लेकिन वो इत्काफ करना चाहता है, तो वो सुन्नत इत्काफ नहीं होगा, नफल होगा, मुस्तहब होगा, गैर मुक़द्दा सुन्नत का इत्काफ होगा। कर सकते हैं, आप बीमार हैं, आप कहें कि मैं रोज़ा तो नहीं रख पा रही, लेकिन अल्लाह पाक जी मैं इत्काफ की नियत कर लेती हूँ, जिक्र इबादत करें, ख़ुद को रब के लिए महदूद करें। अब औरत ने नियत कर ली है, मन्नत मान ली है कि मेरा ये काम हो गया, मेरा बच्चा मेडिकल में चला गया सपोजिंग, तो मैं जो हूँ मैं इत्काफ करूँगी। अब शोहर इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है, अब वो क्या करे, क्योंकि शोहर की इजाज़त के बगैर तो इत्काफ नहीं है। उसको प्यार से, मोहब्बत से मना लें। हम उनके कमज़ोर लम्हों में उनसे क्या कुछ नहीं मनवा लेती, क्या इत्काफ नहीं मनवा सकती अगर दिल से मनवाना चाहे, लड़के नहीं। अब औरत ने मन्नत मान ली, अब मियाँ कहता है कि इत्काफ तो नहीं करने दूंगा, ये बहुत पूछा गया है। देखिए शोहर की इजाज़त के बगैर इत्काफ नहीं है, शोहर को हक हासिल है, वो रोक सकता है। अब कब वो मन्नत तो पूरी करनी है, कब करे, अगर खुदा न खास्ता औरत को तलाक हो जाती है, अल्लाह ना करे, उसके बाद वो मन्नत पूरी करेगी, या शोहर अगर उसकी ज़िंदगी में गुजर जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा, बहुत ज़िंदगी लिखी है, तो वो फिर उसके बाद मन्नत पूरी करेगी। अगर शोहर ने इजाज़त दे दी कि ठीक है आप इत्काफ कर लें, वो मूड में थे, लहर में थे, बादशाह सलामत, इजाज़त दे दी, और अब वो बाद में कहते हैं, बीवी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, नियत कर ली, वो कहते हैं कि अब नहीं, तुमने नहीं बैठना, अब वो नहीं रोक सकते, अब वो नहीं रोक सके, अगर वो रोकेंगे तो गुनाहगार होंगे, इसलिए वो सोच समझ के आपको इजाज़त दें, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या है कि फ़ोन का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन को बिला ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करना, दीन के काम करना है, बातचीत से बाज रहना है, फजूल बातें नहीं करनी। इत्काफ तो हो जाएगा मगर बेनूर होगा, बेबरकत होगा, तासीर नहीं मिलेगी। अपने ख्यालों को पाक, अपनी सोचों को पाक, अपनी ज़बान को बिला ज़रूरत बातें नहीं करनी। बात की इजाज़त है, आप अपने शोहर से, बच्चों से बात कर सकती हैं, उनका कोई मसला है वो आपके पास आके, आपके महरम रिश्तेदार, आपके प्यारे आपसे पूछ सकते हैं, यानी चुप रहने, चुप का रोज़ा नहीं है, लेकिन कलाम इसलिए नहीं करना कि हम अपनी ज़बान को लगवियात से बचाए रखें। क्या करना क्या है, मुराकबा करें, कुरान की तिलावत करें, हदीस की बुक्स पढ़ें, अपने मखरज और तिलावत को दुरुस्त करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, इल्म दीन आप उलमा फुक़हा को दर्स व तदरीस करें, सुने सुनाएं, अंबिया के किस्से कहानियाँ, अज़कार, सीरा, औलिया सालिहीन की हकायात, दीन के अमूर की कुतब ये पढ़ें, ठीक है ना। और आपने इत्काफ के दौरान ना तो कमरे से बिला ज़रूरत निकलना है, बिला ज़रूरत मैं कह रही, ना गुस्ल अपना रिलैक्स होने के लिए नहीं करना, ज़रूरत के तहत करना है। इसके अलावा आपने इसी दौरान अपनी ज़बान को कंट्रोल करना है, निगाह को कंट्रोल करना है। निगाह का कंट्रोल क्या, सोशल मीडिया से आपने दूर रहना है। मेरा ख्याल है हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की हैं।
اور اللہ क्या हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके आप कोशिश पूछ लें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंशाअल्लाह उसको कवर करूँ। अल्लाह सैयदना मोहम्मद फ़ी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद फ़ी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या रब्बे करीम या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, ऐ मेरे दाताओं के दाता, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरे सामने ये बंदियां रोज़े से हाथ उठाए बैठी हैं। जुमे का दिन हो, तेरी अताओं की बारिश हो, तू देने पे तैयार हो, बंदे मांगने पे, तुझे मनाने पे, तुझे राज़ी करने पे तेरे दर पे आस लगाए बैठी हूँ। इनमें कितने ही हैं जो कल और अगले 2 दिनों में तेरे मुत्तकिफ, तेरे फ़कीर बनने जा रहे हैं। अल्लाह करीम ये सारे फ़कीर अपने दिल में मुरादें, मन्नतें, आसें, आहें, उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अल्लाह करीम तू देने वाला है, तेरी शान देना है। अल्लाह करीम तुझे देना आता है, तू गैब से देता है, तू वहाँ से देता है, हमें उम्मीद भी नहीं होती। अल्लाह करीम कितने ही हैं जो रोज़ी रोटी की तलाश में हैं। अल्लाह करीम कितने ही बड़े बूढ़े बच्चे जवान अल्लाह करीम अपने लिए बेहतरीन रोज़ी रोटी फरागी चाहते हैं। अल्लाह करीम तू आसाइश, कुशाइश और फरागी बरकत अता फरमा दे। ऐ मेरे करीम मालिक, कितने हमारे बच्चे हैं जो बीमार हैं, अल्लाह करीम रोग लिए बैठे हैं, ना किसी को बता सकते हैं, शर्म भरम हायल हैं। अल्लाह करीम हर एक के जिस्मानी रूहानी रोगों को अल्लाह करीम आफियत, बरकत और कामलियत के साथ अल्लाह करीम वजूदों से, रूहों से देश निकाला दे दें। ऐ मेरे करीम मालिक, और सबके पर्दे कायम रहें, भरम शर्म कायम रहें। अल्लाह करीम कितने ही हैं जो झूठे मुकदमों में, अल्लाह करीम जेलों में, कैद तन्हाई में, रमज़ान का महीना और मालिक झूठे मुकदमों में अल्लाह सोने उम्मत के लिए उठे थे, दीन के लिए चले थे। मालिक तू भरम रख ले, दीन की खैर कर दे, दीन पे चलने वालों की खैर कर दे, अपने सच्चे करों को अल्लाह करीम बचा ले, रहम कर दे, फजल कर दे, करम कर दे। ऐ मेरे करीम मालिक, फ़लस्तीन लुट गया, कट गया, उजड़ गया, बिखर गया, दजाली फितनों ने छू लिया, दजाली फितनों ने पंजे गाड़ दिए। मालिक तू रहमान, तू रहीम, तू करीम। अल्लाह करीम हम वो मामला तेरे स्पुर्द करते हैं। अल्लाह करीम तुम उनके ज़ख्मों पे मदावा भी बन, मरहम भी बन। अल्लाह करीम कंपनसेट भी कर, तू बेहतरीन मदावे करने वाला है, तू अज़लों से करता है। अल्लाह उन्हें रुलने से, लुटने से, अल्लाह करीम मिटने से बचा ले, ज़ाया होने से बचा ले। तेरे हबीब के उम्मती, उस पाक सरजमीन के वासी, अल्लाह करीम तू बचा लेगा, इंशाअल्लाह तू बचा लेगा। वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाह करीम मेरा अपना देश, मेरा अपना देश, अल्लाह करीम लोग पानी से इफ्तारियाँ कर रहे हैं। अल्लाह करीम एक एक उस फर्द की मुझे खबर है कि जिनके किचन में, जिनकी रसोइयों में नमक भी नहीं है, उनकी नमक मिर्च वाली बोतलें खाली हैं और वो रोज़े से हैं। अल्लाह करीम हमारे दस्तरखान, हमारे अकाउंट भरे पड़े हैं। अल्लाह करीम हमें पूछ ना करना, अल्लाह करीम हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना कि हम उनको पहुंच नहीं सके। अल्लाह करीम हमसे ज़्यादा तुझे याद करने वाले, हमसे ज़्यादा तकवे वाले अल्लाह करीम फाकों से रोज़े रख रहे हैं और खोल रहे हैं। मालिक तू उन्हें भर दे, तू उन्हें भर दे और हमें माफ़ कर दे कि हम उन्हें पहुंच नहीं सके, हम चाहते हुए भी उन्हें पहुंच नहीं सके। ऐ मेरे करीम मालिक, हम तुझसे तुझे मांगते हैं, तेरे इल्म में से इल्म, तेरे इल्म में से इल्म मांगते हैं। अल्लाह तेरी मार्फत चाहते हैं। अल्लाह कामिल ईमान, कामिल इखलास, इखलाक, बरकत, आफियत हमें, उम्मत को, नस्लों को, हमारे ग्रुप्स को, जिन्नो इनस को अता फरमा दे। अल्लाह करीम हम सब के नफली अमाल, अल्लाह करीम इबादत, अल्लाह करीम जो टूटे फूटे हम कर सके, मालिक उन सब को अल्लाह करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले खाना, अल्लाह करीम अहले बदरीन, साहब बदरीन, अल्लाह करीम ओहद, खंदक, अज़ल से अबद तक
तमाम पैगम्बरों, रुसल, गौस, कुतुब, अब्दाल, मुहद्दिसीन, मौलमीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन, मौरखीन, अल्लाह करीम शहुदा, गाजियान, ताबईन, तबा ताबईन, सहाबा, कुतुब, अब्दाल, उताद, खियार, इमरान, औलिया उल्लाह, रजालुल गैब, अल्लाह करीम एक एक को, और हम सब के प्यारे जो उस दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह करीम उनको कबूर को रोशन करें, और अल्लाह करीम उन पे कोई सख्ती है तो माफ़ करें। अल्लाह करीम हमारे मेका, ससुराल, निनहाल, दिदहाल, दोस्त, अहबाब, हमसे जुड़े ना जुड़े एक एक फ़र्द पे रहम फरमाएं, एक एक फ़र्द पे ज़मीन के नीचे ज़मीन के ऊपर रहम फरमा दें। अल्लाह करीम मुश्किलें सब की हल फरमा दें। अल्लाह करीम सब की नाकामियों को कामयाबियों में बदलें, बेबसियाँ दूर कर दें। अल्लाह बेबसियाँ दूर कर दें। अल्लाह करीम ये बच्चों के फितनों से, अल्लाह करीम शैतान के चालों ढालों से, इनके नंग से, अल्लाह करीम इनके गैर फितरी तलक़ात से, इनके नशों सूटों से, अल्लाह करीम आफियत और बरकत के साथ इन्हें निकाल, और माओं के कलेजे ठंडे कर दे। अल्लाह करीम घर भी रोशन कर, खबरें भी रोशन कर। अल्लाह करीम दाएं बाएं से हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम नूर की बारिश कर दे जहाँ जहाँ ये सब बैठे। अल्लाह करीम एक एक घर, एक एक दर फरिश्तों और रहमतों की फवार में, अल्लाह करीम झुरमट में उनकी दुआओं और आमीन में आ जाए। अल्लाह करीम हमारे दिलों को कीना से, नफरत से, बुग़्ज़ से, बुखल से पाक कर दे। अल्लाह करीम हम सारे फ़कीर, मंगते, बकारी, अल्लाह करीम तू शाह सवार कर सकता है। जिसे तू शाह सवार करे उसे कोई ज़वाल नहीं दे सकता, और जिसे तू ज़वाल देना चाहे उसे कोई उठा नहीं सकता। मालिक तेरे दर के फ़कीर हैं, अपने ख़जानों से अभी अता फरमा, सदा अता फरमा, बेशुमार, बेसवाल, बेहिसाब, ला तादाद बरकतों वाला ज़र्रा अता फरमा दे। तू अता फरमा सकता है, अता फरमा सकता है, तू अता फरमा देता है, तू बिन मांगे देता है। मालिक तू दे दे, जो बेटे चाहता है उसे बेटे दे, जो बेटियां चाहता है उसे बेटे दे, बेटियां बेटे सब दे। अल्लाह करीम नस्लों को भर गोदे आबाद कर, बेहतरीन जोज, बाशरियत, नेक, स्वाले, कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाले, दीन के सच्चे सुच्चे साई दाई, और अल्लाह करीम नेक स्वाले ख़ानदान अल्लाह करीम अता फरमा। अल्लाह करीम जो बच्चे ऐबदार हैं, अल्लाह करीम कोई उन्हें जिस्मानी रूहानी कोई नक्स, अल्लाह करीम तू दूर कर दे। तू खालिक, तू मालिक, तू दूर करने वाला, तूने पैदा किया, अल्लाह करीम उन्हें मुबर्रा कर दे अबू से। मालिक तू कर दे, जो घर भूले उन्हें घर बुला, उनके लिए जोज, अल्लाह करीम ख़ानदान, अल्लाह करीम जो गोदें खाली, जिन बच्चियों के नुकसान हुए हैं अल्लाह भर दे, अल्लाह कंपनसेट कर दे मेरे मालिक। खाली गोद उठ जाती है मौला, खाली गोद उठ जाती है, अता फरमा दे। अल्लाह करीम सारे ही मुश्किलों के मारे हैं, दुदकारे हैं, तंगियों मुश्किलों से निकाल ले। अल्लाह करीम तू तेरे कायनात को भर देता है, तूने ज़मीन को मेवों से, सोने से, चांदी से, फलों से भर दिया ज़मीन को। अल्लाह उगा दे हमारे लिए भी फसलें। अल्लाह करीम इज़्ज़तें, बरकतें, रहमतें, राहतें, शिफाएं, करम, फजल, अल्लाह करीम तख्त, बख्त, मुकद्दर, शान, आन, आजिज़ी के साथ अता फरमा दे। अल्लाह करीम कोई खाली झोली ना उठे, सबकी आंखें भी ठंडी, दिल भी ठंडे, राहत भी, रहमत भी। डिप्रेशन से बचा मालिक, फजल और करम कर, सबके घाव भर दे, सब पे मरहम लगा दे। अल्लाह करीम उठे हाथों को अपनी बारगाह में कबूल कर दे। अल्लाह सोने मांगना नहीं आता, हर दुआ आफियत बरकत के साथ अता फरमा, बिन मांगे हर खैर दे, हर शर से बचा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन हरहमना या रब्बुल आलमीन।